Hello and welcome to an academy. Good afternoon, everybody. कैसे हैं सब लोग? Hi guys, how are you doing? Hello Shruti. Hi Mr. Awesome. Mayank, Anchal. Good afternoon and welcome to this session, guys. So today we will be having a discussion on the newly introduced social media rules and regulation by the Ministry of Information Technology and Electronics. Okay. तो चलिए guys इस सेशन को शुरू करते हैं without wasting any time. All the people who are going to be here for the very first time, I am Advocate Rishikesh Kate and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exams that goes for ZAT, IFT, CMAT and particularly TISS. So this is the channel guys where I will be coming live twice in a day in this week. One is 11 a.m. जहाँ पर हम लोग editorial analysis का class करेंगे and one is 7 p.m. where we will be doing the TISNET previous year papers. Okay, TISNET के previous year papers करेंगे हम लोग and today we are going to do 2019. हमने 2020 का paper already Monday को analyze किया था. We will do the 2019 paper today. सर इंटरनेशनल इशू भी आ सकता है क्या जीडी में लाइक अफगानिस्तान और साउथ चाइना सी? यस ऋषभ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. हेलो सर, मॉर्निंग में सेकेंड डोज के लिए गई थी. कांग्रेचुलेशंस, यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड. वैभवी, क्या बात है. हाय सार्थक, बिजनेसेस, अंकुर, पंकुरी एंड अंजरी, गुड आफ्टरनून टू यू आल्सो एंड वेलकम टू दिस सेशन. सो गाइज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर कैट, इसमें आपको काफी कुछ वैल्यू ऑफरिंग्स मिलते हैं जैसे फुल लेंथ मॉक्स, डेडिकेटेड बैचेस एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, अलॉन्ग विथ ऑल द प्लस बेनिफिट्स. गाइज सारे जो प्लस बेनिफिट्स है आपको सारे के सारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे with a personal coach, exclusive preparation of the OMEDs, expert guidelines and personalized tense analysis. ठीक है, आई थिंक सो है वो. यस, अफगानिस्तान का ग्रोइंग प्रॉब्लम कल हम लोग बात करने वाले हैं उसके ऊपर. द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ अफगानिस्तान, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट टुमारो. So guys, all the people preparing for CAT 2021 and who will also focus on TISNET 2022, you guys should go for the 1 year subscription plan that goes for 39,500 for Iconic and 22,550 for Plus. और जो लोग CAT 2022 को टारगेट करेंगे, you guys should go for the 2 year subscription plan that goes for 32,800 for Iconic and 59,000 rupees 999 for 2 years of Iconic, guys. And do not forget to use this code RUSHIRUSHI, which will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. Hey Harshmeet, Megha, Sukanshika and Satyaki, good afternoon to you also and welcome to this session. न्यू बैचेस गाइस 7 अगस्त से और आज से नए बैच शुरू हो रहे हैं फॉर कैट 2021 एंड कैट 2022. So you guys know the educator code already. Subscribe to the Plus and Iconic platforms today. Enroll to these classes and enhance your learning only with an academy. Hello Dipit, good afternoon to you also and welcome to the class. Okay, शेड्यूल्ड के टेस्ट कब होगा? होगा इस वीक में, इस मंथ में होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. मैं ले लूंगा तुम लोगों का स्केड्यूल, सोर्सेस और फीचर्स के ऊपर टेस्ट जरूर लूंगा. ओके गाइस, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक. नाउ किसी भी ग्रुप डिस्कशन में गाइस या फिर किसी भी आंसर में या फिर किसी भी एक्सटेम्पोर में आप, मैंने लास्ट टाइम ही आप लोगों को बताया था, फिर एक बार बता रहा हूं फॉर द पीपल हु हैव जॉइंड फॉर वेरी फर्स्ट टाइम दिस सेशन, कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो काफी क्रिस्प होना चाहिए गाइस. ओके, इट शुड बी वेरी 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 क्रिस्प. इट शुड पर्टिकुलरली ओपन द गेट्स टू योर आंसर और टू द डिस्कशन. तो इसीलिए always make it a point that your introduction should not be, if you are writing an essay, अगर आप essay लिख रहे हो तो it should not be more than 60 to 80 words. Okay, आपका ideal introduction should be 60 to 80 words wherein you are just going to tell why this topic is important or why is everybody in this country talking about this topic, या फिर ये topic का importance क्या है, यही आप बता सकते हो. Okay, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि 60 to 80 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इफ यू आर डूइंग इट इन अ जीडी गाइस, इंट्रो में खुद का इंट्रो होना चाहिए विद द टॉपिक इंट्रोडक्शन इन जीडी. यस, इफ यू आर ओपनिंग, अगर आप ओपन कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन तो यू कैन से गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर इज द टाइम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन. आप कह सकते हो कि माय नेम इज ऋषभ एंड
I will introduce to you about this topic. Talking about this topic, the government of India announced the new IT rules for social media platforms in a significant social media intermediaries categories. ऐसा आप introduction कर सकते हो. Okay, you can introduce this topic in particular ways. Okay, तो इंट्रोडक्शन में ये आपके 3 पॉइंट आने चाहिए गाइस. प्लीज इग्नोर दिस थिंग, ये मैं एडिट करना भूल गया. सो डोंट पे अटेंशन ऑन दिस थिंग. ये वाला मेन कंटेंट है, इसके ऊपर फोकस करो. नाउ व्हाई इज देयर अ टॉक फॉर द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन? Because the government of India announced new IT rules in the month of February for all the social media platforms in what in significant, okay, significant social media social media intermediaries, that is SSMI categories. Okay, SSMI categories में गवर्नमेंट ने नए आईटी रूल्स को इंट्रोड्यूस किया था. ये जीडीए के लिए भी हो सकता है, ये एसएस के लिए भी हो सकता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पर्टिकुलरली ये सिर्फ और सिर्फ जीडी के लिए होगा. इट कैन बी फॉर एसएस ऑल्सो, इट कैन बी फॉर एक्सटेम्पोर ऑल्सो. However, what important is कि ये issue आपको समझना important है मयांक. This is important कि you understand the issue, and then particularly no matter what or where it is asked, you were able to contribute through your writings or through your expression. Okay. Now, with regards to this, okay, with regards to this messaging platform, WhatsApp had moved, okay, it has moved to the Delhi High Court to challenge the traceability provision, okay, traceability provision in the new IT rules 2021. Traceability provision क्या है? What is the traceability provision? I will tell it to you guys in detail in the issues associated. Okay, issues associated में आपको traceability के बारे में मैं बताऊंगा जरूर. Okay, what is the traceability provision? Now earlier, okay, earlier in Ministry of Electronics and IT, कौन थे Minister of Electronics and IT? It were Shankar Prasad. Okay, Shankar Prasad was particularly the minister who had introduced this. He had sent a notice to WhatsApp asking to withdraw Ravi Shankar Prasad. Yes, withdraw a controversial update to its privacy policy, which might be a threat to the data protection of Indians. Now, guys, ये भी एक बहुत prominent argument है from a very beginning. Okay, data protection, data इतना crucial है. However, we don't understand the implication. हमारा data कितना crucial है. We are vulnerable to so many aspects or so many threats. You see a lot of hi Aditi, Adrika, Chavi and Suman, guys, good afternoon and welcome to the class. You see अभी digital frauds या फिर I am not particularly only talking about banking fraud या फिर financial frauds के बारे में ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ. I am talking about everything. मैं digital fraud overall एक umbrella के बारे में बात कर रहा हूँ. To tell you the importance, और इसके बारे में आपको बस थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँ तो we particularly are technology savvy people. Okay, हम technology use करते हैं. We use our phones, we use our tablets, we use our laptops for various purposes. पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए, शॉपिंग करने के लिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, फॉर सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, किसी के लिए भी हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं. हैव यू गाइस बिना पढ़े एग्रीमेंट कर देते हैं टीएनसी को? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हैव यू गाइस एवर एक्सपीरियंस दिस थिंग दैट ऑल ऑफ अ सडन you have visited a mall or you have uploaded your information somewhere and you have started receiving spam messages? आप लोगों को ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है क्या? एकदम से आपको, if you have visited a mall, आप मॉल में जाते हो, ओके, आप मॉल में जाते हो एंड आपको वो बोलते हैं कि you will be winner for a mega bumper prize of Mercedes Benz S Class, iPhone 12 Plus Pro, iPad Pro, MacBook Air Pro वर्जन. ऐसा वो हम लोगों को लालच देते हैं और हमसे एक फॉर्म भरा के लेते हैं. देयर इज अ स्मॉल टिकट टाइप ऑफ थिंग जिसमें आप अपना नाम, अपना नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना डेट, अपना बर्थ डेट, अपने गर्लफ्रेंड का बर्थ डेट, अपने एनिवर्सरी का डेट, अपना एड्रेस, सारा लिट्ठा चोखा आप उसमें भर देते हो. ओके, कि इन दिस होप
कि शायद हमारा नाम उस मर्सिडीज बेंच बम्पर प्राइज में अपना नाम आ जाए, बट एक्चुअली दिस इज अ गिमिक. Okay, there can be some genuine contest where you will get, okay, आप genuine contest भी हो सकते हैं जहां पर they will give you the bumper prize, but ultimately most of the times this is a gimmick of data collection. ये आपका डेटा कलेक्ट करते हैं and accordingly. How many of you have watched this movie called The Social Dilemma? Social Dilemma कितने लोगों ने देखा है नेटफ्लिक्स पर? Amazon पे कोई प्रोडक्ट सर्च किया तो उसका एड इंस्टाग्राम पे आता है. इनफैक्ट सर, फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसरीज ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी, आफ्टर व्हाइल वी सी एड्स ऑफ दैट कंपनी इन फेसबुक और यूट्यूब. करेक्ट. मेरा ट्विटर हैक हुआ था एक बार स्कूल में ट्विटर यूज किया था. इफ यू गाइज हैव नॉट सीन ना, इसको देखना जरूर. नेटफ्लिक्स पर ये मूवी अवेलेबल है, सोशल डिलेमा. यू विल स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया. ओके, आप सोशल मीडिया को यूज करना बंद कर दोगे. इट इज एन आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री. However, coming back to the topic, guys, coming back to the topic, मैं यही बता रहा हूं कि हम लोग अपने डेटा को इतना लाइटली लेते हैं, बट द कंपनीज और हमारा डेटा इतना वैल्यूएबल होता है कंपनीज को, क्योंकि उनको स्पेसिफिक ऑडियंस मिल जाते हैं ना, स्पेसिफिक ऑडियंस मिल जाते हैं टू टारगेट देयर प्रोडक्ट. जैसे पंखुरी ने थोड़ी देर पहले कहा, सार्थक ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हम Amazon पे कोई एक चीज सर्च कर रहे हैं, उसका एड हमको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा. तो अल्टीमेटली दिस इज हाउ द कंपनीज टारगेट एंड हाउ डेटा प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन टुडेज डे. अब डेटा प्रोटेक्शन, चलो इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे के स्लाइड्स में बता देता हूं. अनअकैडमी का भी तो आता है एड सब जगह. वो तो इट्स नॉट कि तुम लोग ने उसका डेटा, उस पे डेटा अपलोड किया है. अनअकैडमी विल नॉट डू दैट. अल्टीमेटली इट इज, अनअकैडमी वांट्स टू इंक्रीज द रीच, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना है, क्योंकि वी वांट टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन. तो दिस इज and it spends a lot of money on marketing and advertisement. ऐसा नहीं है कि तुम्हारे AI का यूज करके वो तुमको टारगेट करता है. नो, Unacademy as a company invests a lot of money in advertisement and इसीलिए तो हमने IPL को स्पॉन्सर किया, हमने एक एंथम निकाला, हमने एक पूरी वेब सीरीज निकाली, फिर हम अब नया MTV पर अनअकैडमी अनवाइंड शुरू कर रहे हैं. जैसे MTV का कोक स्टूडियो होता है, वैसे एवरी फ्राइडे 7 बजे अनअकैडमी का अनवाइंड भी शुरू हो जाएगा. So we are spending a lot of money on our ads and marketing to increase our reach, and we are not taking help of this kinds of gimmick. AI gimmick नहीं कर रहे हैं. Okay, if you अगर आप लोग लिंक्डइन पर हो तो यू शुड सर्च अनअकैडमी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट है, आई फॉरगॉट हिज नेम, कुणाल सहगल या ऐसा कुछ उनका नाम है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट यू कैन सर्च. Sir, these classes are focused on case discussion, GD, descriptive writing. Yes, Satyaki, this is focused on that aspect. Okay, चलो, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन गाइस. दिस शुड बी योर इंट्रोडक्शन फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक. अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स. ओके, की पॉइंट्स क्या है इस न्यू रूल्स के, नए रूल्स के की एस्पेक्ट क्या है. सबसे पहला, न्यू आईटी रूल्स 2021. ये चीज को नया बनाया गया है. द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी guidelines for intermediaries and digital media ethics code rule 2021. So what is the name of the new IT rule? It is the information technology guidelines for intermediaries and digital ethics code rule 2021. Important है, इसे भूलना नहीं. Can help you. Okay, this is the name of the new rule in February 2021 and provided a 3 months compliance window. मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये न्यू रूल इंट्रोड्यूस कर दिया और कंपनी को बोल दिया कि आप अब कल से आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा. It was not like that. It gave 3 months to all the companies which comes in the ambit of this new code or this new guideline for digital media ethics. Okay, digital media
के लिए जो भी इस एम्बिट में आता है उनको 3 महीने का टारगेट दिया था. हाउएवर दिस इज अ मिसकंसेप्शन. ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है दैट दिस पर्टिकुलरली टारगेटेड द सोशल मीडिया सच एज व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर. इट वाज विद एवरीबॉडी. ओके, ये सब लोगों के लिए था. who all come in the ambit. The aim, okay, what was the aim of this new rule? It aimed at substantially empowering the ordinary users of digital platform by seeking redressal, okay, redressal for their grievance. Grievance का मतलब होता है complaint, okay, कि कभी कभी आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑर्डर किया है अमेजोन पर, आपने कुछ ऑर्डर किया है, आपके पैसे कट गए बट वो प्रोडक्ट ही डिलीवर नहीं हुआ, या द प्रोडक्ट वाज फॉल्टी एंड द कंपनी रिफ्यूज टू रिप्लेस इट और एक्सचेंज इट और टेक इट बैक. ऐसे अलग अलग कंप्लेंट्स होते हैं. ओके, तो ऐसे कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए बहुत और ज्यादा एम्पावर किया. ओके, और ज्यादा एम्पावर किया to the ordinary users. This was the objective, this was the aim of the bill. So we can say ki the intention of the government were here was not bad या फिर vague नहीं था. It had all the good intentions of empowering the ordinary user on the digital platform. Okay, and commanding accountability in case of infringement of their rights. Okay, अकाउंटेबिलिटी भी तो चाहिए ना, कि अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हो जाता है तो फिर आप उसको रिड्रेस कर सको. बाय द वे, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन सा कैटेगरी आता है, कौन सा क्लासिफिकेशन आता है? which category classification comes for constitutional infringement of their rights? जल्दी बताओ. डीपीएसपी नहीं. जब मैंने फंडामेंटल राइट क्लियरली बताया है तो डीपीएसपी कहां से आ गया रे सार्थक? जल्दी बताओ गाइस, इजी है. अच्छा, लेट मी रिफ्रेज. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सा है? आर्टिकल 13? नो. आर्टिकल 32, करेक्ट सुकांशिका. आर्टिकल नंबर 32, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. 5 रिट्स. रिट्स क्यों इश्यू किए जाते हैं? इट सीक्स रिड्रेसल फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट ना. आपके फंडामेंटल राइट्स जब इन्फ्रिंज होते हैं तभी तो यू गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट और यू गो इनटू द हाई कोर्ट कि मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, उसे एनफोर्स करना है. आर्टिकल नंबर 61 is impeachment of the president, Mayank. That is impeachment of the president. Okay, तो ये एक अकाउंटेबिलिटी के लिए भी है. So these are the key points. इसका कवरेज क्या है? Who all will come in the ambit? Okay, इसके ambit में कौन कौन लोग आएगा? Coverage of this new IT rules will pertain to OTT platforms. सारे OTT platforms आएंगे इसमें. All the OTT platforms, Amazon Prime, Netflix, Hotstar, Alt Balaji, फिर MX Player, और जो कुछ भी available है. Okay, all the OTT platforms which are available here will come in the ambit of the new rule. Social media as well as digital news media organization, okay, digital news media organization वाले जो भी है, those people will also come into ambit. Also all the social media, सारा social media भी इस पे आ गया. आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, कुहू है. ओके, ऑल दीज थिंग्स विल कम. टेलीग्राम विल आल्सो कम इन दैट एम्बिट. टेलीग्राम भी तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है. सो एवरीथिंग. सो ये एक मिसकंसेप्शन था बहुत लोगों को लेकर कि ये जो नए आईटी रूल्स है इट वर ओनली related. Okay, it were only related with the social media. वो सिर्फ social media से ही related है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. It has OTT, it was to the OTT platform also. Hi Paul, Sayantika and Raghav, good afternoon and welcome to this session. Digital News Media Organization.
and there are some associated cases, Supreme Court cases here. सबसे पहला is the Prajwal case versus Prajwal versus Union of India case. Particularly इसमें गवर्नमेंट ने ना इस केस में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को एस्टैब्लिश किया था. ओके, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी. 1 बजे वाला सेशन अटेंड करना मुश्किल होगा इस हफ्ते. अच्छा, इतना बताने के लिए आप आए हो सयंतिका, एक मैसेज कर देते. ओके, तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ओके ओके नो प्रॉब्लम, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना सयंतिका. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर व्हाट? ओके, किस चीज के लिए गाइडलाइंस या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश किए थे सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रज्वल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट, ओके, एंड इंप्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ, ओके, एंड इंप्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ removing child pornography. I haven't really read about Prajwal versus Union of India case. वो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, but I will see. मैं आज देखता हूँ वो केस मिलता है क्या मुझे, and I will do the briefing. इसका verdict क्या है वो मैं देखता हूँ. What was the case and what is the verdict? However, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या फिर रेप रिलेटेड images, rape related videos and sites in the content hosting platforms will be removed. Okay, ऐसे जो भी applications है जिसमें child pornography है, rape related videos है, rape related images है, ऐसे sites और जिसमें भी platforms है, उसको एलिमिनेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को एस्टैब्लिश किया था. ओके, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर दैट. एंड तहजीन पूनावाला केस, ओके, तहजीन पूनावाला केस में पर्टिकुलरली फुल फ्रीडम टू स्टॉप और डिसेमिनेट द इररिस्पांसिबल एंड एक्सप्लोसिव मैसेजेस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. मतलब प्रोवोकेटिव और फेक न्यूज और फेक मैसेजेस थे, उसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने इश्यूज किए थे गाइडलाइंस को. दिस इज अ 2018 केस. ओके, 2018 केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवोकेटिव और फेक न्यूज विच इंस्टिगेट्स वायलेंस, ओके, विच इंस्टिगेट्स मॉब वायलेंस, ओके, मॉब वायलेंस को अगर वो इंस्टिगेट करता है तो ऐसे मैसेजेस के रिलेटेड, ऐसे कंटेंट के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा गाइडलाइन दिया था. नो, तहजीन पूनावाला डिड नॉट डू. तहजीन पूनावाला नहीं किया गया, उसने नहीं किया था. ओके, सो दिस आर द की पॉइंट्स गाइस. ओके, ये सारे की पॉइंट्स है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये चीज समझ में आ गया है गाइस? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके ओके, अब देखते हैं व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द गाइडलाइंस. ओके, इन गाइडलाइंस के ओवरव्यूज क्या है, व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑल अबाउट. सबसे पहला तो क्लासिफिकेशंस ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएट है. ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, इसमें दो टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है. वन इज रेगुलर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट and second one is significant. Okay, regular मतलब any platform which has less than 50 lakh subscribers or user base. Okay, जिनका user base या फिर subscribers base 50 lakh है, उससे कम अगर है तो it will be regular social media intermediary. और significant हम उसे कहेंगे जिनका 50 लाख या फिर 50 लाख से ज्यादा ही है. मैंने गलत लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. क्या तुम लोग को तो पता ही है कि मैं मैथ्स में कितना वीक हूं. ओके, 50 लाख अगर ज्यादा है तो फिर रेगुलर कहा जाएगा, और 50 लाख से अगर 50 लाख या फिर 50 लाख से ज्यादा है
तो they will be classified as significant intermediaries. This was one of the guidelines under the new IT, right? Hey Sohini, good evening and welcome, good afternoon and welcome to the class. इतने बुरे तो नहीं हो सकते तुम लोग, कम ऑन यार, कि तुम लोग ग्रेटर देन और लोअर देन को साइन गलत कर दो. ओके, देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स. 3 टाइप के ऑफिसर्स अपॉइंट करने के लिए कहा था. बताओ कौन से. मैंने ये वी हैव डिस्कस दिस इज कपल ऑफ टाइम्स, हमने ये कपल ऑफ टाइम्स डिस्कस किया है. 3 टाइप्स के ऑफिसर्स कौन से थे. कम ऑन गाइस, वेरी गुड. वन वाज ग्रीवियंस ऑफिसर, एक है ग्रीवियंस, ओके ग्रीवियंस. दूसरा, कम ऑन सार्थक, श्रुति, अगर नहीं पता है तो बोल दो सर नहीं पता है, मैं बता दूंगा. एक है नोडल ऑफिसर जो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए. ओके, नोडल ऑफिस जो 24/7 होना चाहिए. और वन इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. कंप्लायंस ऑफिसर परेश बी लाल, परेश बी लाल व्हाट्सएप के जो ग्रीवियंस ऑफिसर है, भूल गए क्या. परेश बी लाल एंड केविन मकार्टी, जो पहले ट्विटर ने अपॉइंट किया था बट इट वाज रिप्लेस्ड बिकॉज ही इज फ्रॉम कैलिफोर्निया. सो ग्रीवियंस ऑफिसर मतलब क्या, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके ग्रीवियंस है, उसको अच्छे से रिड्रेस किया गया है क्या, किया जा रहा है क्या, उसके लिए ग्रीवियंस ऑफिसर. नोडल ऑफिसर मतलब सारा इंफॉर्मेशन. एंड कंप्लायंस ऑफिसर मतलब ये जो न्यू रूल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं, ओके, ऑल दीज न्यू रूल्स व्हिच आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड, उससे कंपनी कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था. ओके, फिर नेक्स्ट इज ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म. ओके, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी एक एस्टेब्लिश्ड हुआ था. it gave the guidelines to ask the social media platform to have a proper grievance redressal mechanism so that any content, okay, कोई भी content अगर share किया जाता है, does not any content that is shared which violates, okay, जो violate करता है public order को, या फिर जो regulatory नहीं है nature में, उसे वो अच्छे से उसको redress कर सके by the grievance redressal officer. Okay, तो ये जो है, these particularly are the same. Any content which is shared on the platform which is a threat to the law and order of the particular country, या फिर which is not in regulation, जो regulatory में नहीं है, उसके विपरीत अगर कुछ कंटेंट शेयर किया गया है, तो फिर वो कंप्लेंट रेज अगर होती है, तो it should be properly addressed. Okay, it should be properly addressed from the by the grievance redressal company. Yes, he can be from the company, but the only thing here is Rishabh कि he should be an Indian. अगर फॉरेन कंपनी है तो इंडियन ऑफिसर्स को ही अपॉइंट करना है, नॉट फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स. उनके हेडक्वार्टर से नहीं करना है, इंडिया से ही करना है. ओके, फिर मंथली रिपोर्ट्स. ओके, मंथली रिपोर्ट. These new IT rules also ask the companies to prepare a monthly report. एक मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर करना है कि कितने कंप्लेंट्स आपके पास आए, उसमें से आपने कितने सॉल्व किए और उसमें से आपने कितने रिजॉल्व किए, रिजॉल्व नहीं किए. ये सारे चीज का आपको एक रिपोर्ट बनाना है और गवर्नमेंट को सबमिट करना है. So this was one of the points in the guideline. फिर वेरिफिकेशन. ओके, वेरिफिकेशन मतलब वो जो ब्लू टिक नहीं होता, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जो ब्लू टिक आता है वेरिफिकेशन के ऊपर. ओके, वॉलंटरी वेरिफिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहिए फॉर वेरीफाइड अकाउंट्स. ओके, फॉर वेरीफाइड अकाउंट, ये भी एक था. फिर आइडेंटिफाइंग द ओरिजिनेटर्स ऑफ द मैसेजेस. ओके, आइडेंटिफाइंग द ओरिजिनेटर्स ऑफ द मैसेजेस मतलब क्या, यहाँ पर the company should particularly start with a tag system. ओके, एक टैग सिस्टम शुरू कर देना चाहिए.
which made it mandatory for the social media platform specifically कि आप ये नया चीज शुरू करो where we can identify who is the originator of the messages. Now WhatsApp पर अगर हम लोग देखेंगे guys या फिर Twitter पर भी हम लोग देखेंगे a lot of fake news actually surface. Okay, बहुत fake news जो है वो rotate होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल जीता उसके बाद एक ट्वीट काफी वायरल हुआ कि पाकिस्तान के जो जैवलिन थ्रोअर थे उन्होंने ऐसा ट्वीट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय आइडल नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग गोल्ड, सॉरी पाकिस्तान आई कुड नॉट विन गोल्ड फॉर यू. ऐसा एक जो ट्वीट था वो काफी वायरल हो रहा था. सीम्स लाइक दैट वाज अ फेक tweet. Okay, वो fake tweet था. It was not from the official handle of the javelin thrower from Pakistan. तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना, मैसेज के ओरिजिन को आइडेंटिफाई करना, it becomes very difficult nowadays, and the government asked the companies to start this origination of messages. मेरे भाई चन्नू से भी रिलेटेड था गोल्ड वाला. हाँ, yes. And last one is non-compliances of this non-compliance of these laws. Okay, so non-compliance of these laws can result the SSMI in losing the safe harbor. Okay, जो safe harbor दिया गया है इन companies को, the safe harbor protection under section 79. Okay, under section 79 of the IT Act. ओके, ऑफ द आईटी एक्ट 2000. एक सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो था इन कंपनीज को, दे विल लूज. ओके, दे विल लूज दिस सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इफ दे डू नॉट कंप्लाई विद द रूल्स व्हिच आर मेंशन्ड अंडर 79 सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000. ये समझ आ गया गाइस? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस गाइस? ओके, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस न्यू आईटी रूल्स? इश्यूज क्या एसोसिएटेड होंगे इससे? लूपहोल सच एज पीपल यूज वीपीएन टू अवॉइड कंप्लायंसेस ऑफ इंडियन लॉज. प्रॉक्सीज, यस, प्रॉक्सीज. सोचो गाइस, सोचो इश्यूज क्या होंगे. अब आप लोगों को नए रूल्स के बारे में पता चल गया है, नए गाइडलाइंस के बारे में पता चल गया है, तो क्या इश्यूज होंगे? गवर्नमेंट सर्विलेंस टू इट्स सिटीजन्स व्हिच विल कॉन्स्टिट्यूट टू व्हाट? मिस्टर असम, आप अपना आपका नाम बताइए प्लीज. प्लीज टेल मी योर नेम. सिद्धांत. ओके, सिद्धांत बताओ, व्हाट विल इट कॉन्स्टिट्यूट टू? गवर्नमेंट अगर हमको सर्विलियंस कर रहा है वो क्या नोटिफाई करेगा, वो क्या इंप्लाई करेगा? नॉन कॉपरेशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज. वेरी गुड. नॉन कंप्लायंस. वेरी गुड. सोचो सिद्धांत, व्हाट विल इट इंप्लाई? कम ऑन, श्रुति, सार्थक, सुकांशिका, आर यू गाइस देयर इन द क्लास? सोचो क्या इश्यूज होंगे, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, थिंक. डेटा विल बी इनसिक्योर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. डेटा प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा. डेटा प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा. इट वुड टेक टाइम टू इंप्लीमेंट. कहा 3 महीने के बाद गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया ना उसे. सोचो गाइस, सोचो. सिद्धांत, गिव इट अ थॉट. गवर्नमेंट अगर हमको सर्विलियंस कर रही है उसका इंप्लीकेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन ऑफ दैट? थिंक. इजी है गाइस, इट्स वेरी इजी. मैनिपुलेटिंग वोट. एग्जैक्टली ऋषभ.
बराबर, राइट टू प्राइवेसी ब्रीच होगा, राइट टू प्राइवेसी ब्रीच होगा। और क्या क्या हो सकता है सोचो जरा, और क्या क्या हो सकता है, व्हाट एल्स कैन बी एसोसिएटेड? थिंक थिंक थिंक। चलो guys, there is a limited period offer ongoing for the CAT aspirants. You buy 6 months, 12 months of subscription and you get 3 months of subscription free. You get 24 months of subscription and you get 3 months of subscription absolutely for free. So go for the subscription, use the code RUSHIRUSHI and get an additional 10% discount on all your subscriptions. These are the issues that are related guys. Okay, सबसे पहले तो वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट होगा, जैसे सिद्धांत ने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट विल हैव एन सर्विलियंस, सर्विलियंस से अच्छा है गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ सेंसर बोर्ड। ओके, गवर्नमेंट क्या करेगा, इफ देयर आर एनी डिसअफेक्शनेट पोस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट विल डिलीट द पोस्ट। ओके, आपका पोस्ट डिलीट कर देगा। And also if the government is handling the data, it is going to breach your right to privacy. Okay, आपके privacy को right को तो breach करेगा ही करेगा, but at the same times it will also fetter upon the right to freedom of speech. Okay, freedom of speech को भी तो वो curtail करेगा ना, जैसे ट्विटर को बोल रहा था गवर्नमेंट कि इफ यू फाइंड एनी डिसअफेक्शनेट पोस्ट टेक द पोस्ट डाउन। तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो अल्टीमेटली कर्टेल हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल बी एन एडजुडिकेटर और द गवर्नमेंट बी अ रेगुलेटर रादर, और इट विल बी एन मॉनिटरिंग एजेंट फॉर एनी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। किसी भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पर गवर्नमेंट क्वेश्चन कर सकता है एंड दैट कंटेंट कैन बी टेकन आउट। तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच विल आल्सो बी चैलेंज्ड हियर या फिर इन्फ्रिंज हो सकता है। देन दिस इज अ रूल्स, ओके, दिस इज अ रूल्स व्हिच इज बीन इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रॉपर लेजिस्लेशन। ओके, प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं हुआ है, मतलब बाकायदा इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया है या फिर अल्टीमेटली ऑपोजिशन की इसके ऊपर राय भी नहीं ली हुई है। सो इट इज बीन क्रिटिसाइज्ड, ओके, इट इज बीन क्रिटिसाइज्ड कि ये रूल का फॉर्म्युलेशन जो है वो प्रॉपर लीगल बेसिस, लेजिस्लेटिव एक्शन के ऊपर या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बिना किया गया है। ओके, सो हाउएवर दिस इज आर्बिट्री इन नेचर। ओके, ये आर्बिट्री है, आर्बिट्ररी का मतलब होता है प्रॉपर कंसल्टेशन। ओके, आर्बिट्री, पेगासस इज डिफरेंट। ओके, पेगासस डिफरेंट है, पेगासस इज अ स्पाईवेयर, it's a spyware, it's not a rule or it's not a guideline, it's a spyware, it's a software where the government keeps a surveillance on these people. Okay, तो ये एक इसका इश्यू है कि this legislation has been introduced without proper legislation. Then various concerns for the intermediaries. Okay, अलग अलग concerns है intermediaries के लिए जो हमने थोड़ी देर पहले पेगासस इश्यू में आ सकता है ये, बिल्कुल बिल्कुल। पेगासस इज नॉट ऑथोराइज्ड ना, वो ऑथोराइज नहीं है। यू, इट इज लाइक हायरिंग अ डिटेक्टिव। ओके, इट इज लाइक हायरिंग अ डिटेक्टिव। देख रहा है ऋषिकेश काटे क्या कर रहा है, डिटेक्टिव मेरे घर के बाहर होगा, या फिर व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट डू सम छेड़खानी विथ माय फोन, और जो कुछ भी मैं एक्टिविटी करता हूँ, व्हाट्सएप के मेरे सारे चैट्स, मेरे गैलरीज के फोन, ऑल माय फोन कॉल्स, किससे क्या बातें करता हूँ मैं, सब कुछ वो रिकॉर्ड कर लेगा। दैट इज व्हाट इज पेगासस। सो कंसर्न्स फॉर द इंटरमीडिएटरीज गाइस, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा गाइडलाइंस में
कि अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती है तो फिर सेक्शन 79 के तहत, ओके, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट के तहत दे कैन लूज देयर सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, ओके, ये वो लूज कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इश्यू विद द लॉ. Depriving of fair recourse, okay, depriving of fair recourse. Now intermediaries are supposedly to take down the content within 36 hours, okay, within 36 hours when they receive an order from the government. So the company does not get a fair recourse. Intermediaries को investigate करने के लिए time ही नहीं मिलता है कि why this post is supposedly to be taken down, because government ने order किया है कि इस post को डिलीट करना है तो डिलीट करना है. So this is one of the depriving the intermediaries of from a fair recourse and absence of data protection law. We are uploading a lot of data on the websites or on the social media which makes it vulnerable at various levels. अलग अलग level पर हमको वो vulnerable करता है. So we don't have a data protection law as such. There is a data protection bill which is tabled in the parliament in 2019. 2019 से ही data protection bill जो है वो president जी के टेबल पर है, but no action has been taken on it yet. Okay, उसके ऊपर कोई भी action नहीं लिया गया है. तो ये बात समझ में आ गई guys? Everybody has understood this issues समझ में आ गए इस discussion इस topic के? Okay, and last one is way forward guys. Okay, last one is way forward. सबसे पहले तो we need to have an accountability in place. Okay, हमें एक accountability तो चाहिए क्योंकि अगर social media platform if they do not consider liable for any content that has been uploaded on their platform, it really becomes difficult. Okay, वो काफी difficult हो जाएगा. However, India is one of the countries जिसका almost 50 crore का जो population है which has uploaded themselves or they have registered themselves for various platforms. Okay, पूरे platforms को अगर हम मिलाएंगे, India is a country with 50 crore users. तो imagine कितना level पर this thing needs accountability. Okay, अगेन डेटा प्रोटेक्शन लॉ, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक लॉ की तो जरूरत है ही है. द प्रेसिडेंट शुड पर्टिकुलरली लुक इनटू द डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019 एंड पास इट एज सून एज पॉसिबल विद द अमेंडमेंट. एंड लास्ट वन इज डिलिबरेटिंग द स्टेक होल्डर्स. ओके, स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पर्टिकुलर चीज के? तो कंपनीज है, the users है, these are what? These are all stakeholders of this social media platforms or OTT platform. तो नए रूल्स को एक प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेशन, ओके, एक प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाहिए. ओके, कभी कभी बिल्स को भेजा जाता है ना पब्लिक कंसल्टेशन के लिए. द बिल्स आर सेंट टू द जनरल पब्लिक टू हैव अ लुक एंड give their opinion and what does the bill seeks. So okay, तो proper public consultation होना चाहिए. WhatsApp पे एक न्यू फीचर आया है, एक फोटो एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाएगी अपनी. यस, व्यू वंस फीचर, व्यू वंस फीचर जो इंस्टाग्राम ने किया था. इंस्टाग्राम ने भी तो व्यू वंस फीचर अब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ना. सो अब वो WhatsApp पर भी आ गया है. करेक्ट. Okay, so these are the these are the way forwards for the topic guys. Yes, so have you guys understood this? ये सब लोगों को समझ आ गया है टॉपिक पूरा का पूरा? Everybody, मैं पोल करता हूं, सब लोग पोल में आंसर कर देना. ट्रू मतलब यस, फॉल्स मतलब नो. चलो बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक. फिर कल अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे. ओके, वी विल टॉक अबाउट ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ अफगानिस्तान. चलो, बिफोर वी पार्ट वेज गाइस,
Do have a look on the campus placement, IT jobs, free personal mock and group discussion. Achievers बैच शुरू हो रहा है आज से और हॉल ऑफ फेम बैच भी शुरू हो रहा है आज से, and the offer is valid on plus till 11th of August. Also check out the CAT Iconic one-on-one live mentorship program, guys. Speak with the mentor directly, clear it out, discuss concept, discuss exam strategy, build a customized study plan, book slot as per your convenience. So all the people preparing for CAT 2021 and focus on TISNET 22, go for the 1 year subscription plan that goes for 39,500 for Iconic and 22,550 for plus, और 2 साल का plus comes for 32,800 and 59,999 for 2 years of Iconic. And do not forget to use this code RUSHI Rushi. That will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. Thank you all for joining me for this session. You guys were absolutely amazing. I will see you guys at 5 p.m. for the daily GK updates class. Till then, you guys take care. Let's crack it. Bye-bye, guys.